नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। सीधे आपको लिए चलते हैं। लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। मैंने सदन के माध्यम से भी और फ्लोर लीडरों की मीटिंग में भी आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल बाधित करना चाहते हैं। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। A copy of the said bill on the table. Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on External Affairs, Shriman Dr. John Britta Savargal. Sir, I rise to lay on the table a copy each in English and Hindi of the 14th and 15th reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on External Affairs, 18th Lok Sabha, as listed against my name in today's list of business. Thank you, sir. Statements by Ministers, Shriman Dr. Jitendra Singh Ji. Chairman, sir, with your kind permission, I rise to make a statement regarding A, the status of implementation of recommendations / observations contained in the 409th report of the Department-related Parliament Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forest and Climate Change, demand for grants 26-27 pertaining to the Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology. B, the status of implementation of recommendations / observations contained in the 411th report of the Department-related Parliament Standing Committee on Science, Technology, Forests, Environment, Climate Change, on demand for grants 2026-27 pertaining to the Ministry of Earth Sciences. Thank you, Chairman, sir. Shriman Gajendra Singh Shekhawat Ji. Chairman, sir, with your permission, I rise to make a statement regarding status of implementation of the recommendations, observations contained in the 376th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on demand for grants 25-26 pertaining to the Ministry of Culture. Thank you. Honorable members, I have admitted the notice received from Shriman Dr. Jitendra Singh Ji for moving the motion of consideration. I'm coming back, please. Consideration of the public examination, prevention of unfair means, Amendment Bill 2026 as passed by the Lok Sabha. Today in Rajya Sabha by grant of waiver under Rule 123 of the Rules of Procedures and Conduct of Business in Council of States, that is Rajya Sabha. Accordingly, a supplementary list of business for today has been issued for taking up this bill for consideration and passing. Honorable members, the copy of the bill as passed by the Lok Sabha was circulated to members electronically through members portal around 3:30 p.m. yesterday. In view of the short time period available to members, I have decided that those members who decide to give notices of amendments to the said bill may do so now till 12:30 p.m. today, so as to enable the Secretariat to process and circulate the list of amendments. Notices received after 12:30 p.m. will, however, not be processed. Yes. सर, कई दिनों से सदन में गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष लाख प्रयास कर रहा है कि सदन शांतिपूर्वक चले, परंतु ये एक जिद पर अड़े हुए हैं और एक मतलब अब देखिए इस समय क्या हो रहा है। आपकी परमिशन से मैं बोल रहा हूँ। You are really speaking? आपकी परमिशन से मैं बोल रहा हूँ और ये हंगामा कर रहे हैं। मानव देखिए कुछ बात हो जाए। आर्टिकल 75 देख लें संविधान का कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है सदन के प्रति। हम यही तो कह रहे हैं। अब ये लीजिए यही तो मैं कह रहा हूं। देख लीजिए, अब मैं खड़ा हूं, परमिशन से खड़ा हूं, संविधान की बात कर रहा हूं और तरुण चुग जैसा सीनियर मेंबर प्लीज अटैच टू द चेयर। सर तो हम साफ कहना चाहते हैं
कि मंत्रीगण सामान्यता उत्तरदायी हैं, जवाबदेह हैं सदन के प्रति, यही तो कह रहा हूं मैं, और यही भारत का संविधान कह रहा है। तो अगर हम कह रहे हैं कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, छात्रों पर पैलेट फायर हुआ, तो अमित शाह जी आए और जवाब दें। गृह मंत्री का गृह मंत्रालय का जवाब जितेंद्र सिंह क्या देंगे? Let me give my ruling. Now I am not accepting your point of order. There is no point of order with that, and I am going into the matters raised with permission. Shriman Prakash Chik Paraik. श्रीमान माननीय सभापति महोदय, मैं पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में स्थित हासीमारा हवाई अड्डे से के संबंध महत्वपूर्ण जनहित में एक विषय सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ। हासीमारा हमारी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, जो भूटान सीमा तथा कॉरिडोर के निकट स्थित है। वर्तमान में इस क्षेत्र के लोगों को हवाई अड्डे पर निर्भर करना पड़ता है। निकटवर्ती नागरिक हवाई अड्डे अभाव एवं स्थानीय निवासी, चाय बागान के श्रमिक, विद्यार्थियों, पर्यटक एवं रक्षा कर्मियों तथा व्यापारिक समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार ने हासीमारा को उड़ान योजना के अंतर्गत चिन्हित किया है। पूर्व में हासीमारा कोलकाता मार्ग का आवंटन भी किया गया, किंतु संबंधित एयरलाइंस की परिचालन बंद होने के कारण यह परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी स्पष्ट कर दिया कि विमान सेवा के लिए सिविल एन्क्लेव स्थापित करने हेतु 38 एकड़ भूमि की आवश्यकता है तथा यह परियोजना भूमि हस्तांतरण एवं वैदिक स्वीकृतियों के पूर्ण होने पर निर्भर करती है। इस बजट सेशन में नया सरकार का जो बजट हुआ 2026-27, माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में इस बजट में प्रस्ताव दिया गया कि हासीमारा एयरपोर्ट के लिए भूमि आवंटन किया जाए। अंततः मैं भारत सरकार से आग्रह एवं प्रार्थना करता हूं, हासीमारा हवाई अड्डे पर सिविल एविएशन सर्विस की स्थापना हेतु लंबित समय से औपचारिकता को पूर्ण किया जाए, भूमि हस्तांतरण एवं आवश्यक कार्यों में तेजी लाया जाए एवं संशोधन उड़ान योजना के अंतर्गत कोलकाता, दिल्ली, गुवाहाटी एवं अन्य प्रमुख शहरों के लिए नियमित नागरिक विमान सेवा यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाए। यह पहल उत्तर बंगाल के लोगों को बेहतर हवाई संपर्क प्रदान करेगी, डुअर क्षेत्र का पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग एवं आर्थिक विकास की गति देगी और देश की सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्र के संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी। धन्यवाद। श्रीमान संजय सिंह जी। धन्यवाद मान्यवर, आपने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का मुद्दा उठाने का अवसर मुझे दिया। मान्यवर, देवरिया क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर 2003-04 से बैतालपुर चीनी मिल मान्यवर बंद पड़ी हुई है, उनके किसानों का मुद्दा है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अंदर इस चीनी मिल को खुलवाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया, गृह मंत्री अमित शाह जी ने आश्वासन दिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, लेकिन आज तक वो चीनी मिल चली नहीं। वहां चीनी मिल बचाओ संघर्ष समिति के लोग लंबे समय से मान्यवर आंदोलन चला रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की हालत मान्यवर ये है कि बरसों तक उनका पेमेंट नहीं होता है। 1200 करोड़ रुपए किसानों का, 1200 करोड़ रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं है सर, 1200 करोड़ रुपए उनका बकाया है। मान्यवर, किसान अपनी खेती के लिए कर्जा लेता है। मान्यवर, किसान अपनी खेती के लिए जब कर्जा लेता है तो उस वक्त उसके ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य और अफसोस की बात यह है मान्यवर कि जब किसान का बकाया होता है चीनी मिलों पर तो उसको कोई ब्याज नहीं मिलता। इस संबंध में एक निर्णय जुलाई महीने में
डीएम सिंह वर्सेज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मामले में हाईकोर्ट का फैसला आया है 26 जुलाई 2026 को, मान्यवर 16 जुलाई 2026 को। उसमें कहा गया है तो 1996 से लेके, सर मुझे दिखाया नहीं जाता, 1996 से लेके अब तक 30 सालों में किसानों का गन्ना बकाया देने में जब विलंब हुआ है, जब देरी हुई है, उनके पैसे पर ब्याज दिया जाए। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। माननीय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि उत्तर प्रदेश के अंदर 20 से ज्यादा सहकारी सरकारी चीनी मिल बंद हो गई हैं, उनको खुलवाया जाए, लाखों किसानों के जीवन को सुरक्षित किया जाए, उनके उपज को सुरक्षित किया जाए, गन्ने को सुरक्षित किया जाए। चीनी मिल के लिए संघर्ष चल रहा है देवरिया में, वो चीनी मिल भी प्रारंभ की जाए और ब्याज सहित जो उनका बकाया है, जिसके बारे में साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा 14 दिन के अंदर गन्ना बकाया का भुगतान होना चाहिए, उसको मान्यवर सुनिश्चित सरकार की तरफ से कराया जाए। आपके माध्यम से यही मैं सरकार से निवेदन और विनती करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. You have raised important for the farmers, but your friends are not listening to you. श्रीमान घनश्याम तिवारी जी। सभापति महोदय, मैं आपके सामने राजस्थान के क्षेत्र शेखावाटी सीकर झुंझुनू के पेयजल की समस्या के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बहुत अधिक पेयजल के दोहन होने के कारण से उस क्षेत्र में किसानों के लिए और आम जनता के लिए पीने के पानी की समस्या पैदा हो गई है। इस पर भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर एक योजना बनाई, जिसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कुंभाराम लिफ्ट कैनाल के माध्यम से सीकर और झुंझुनू जिले में, विशेषकर सीकर शहर में और उसके आसपास के 867 गांव में पेयजल देने की घोषणा की गई। उसके stood up to speak, when all of us stood up to speak and we touched on this topic, the chairpeople, the chairpersons as well as the treasury benches, including senior ministers, disturbed us. So 2 pieces of information I want to give you very clearly. That who says that their government is saying Amit Shah is not responsible? 2 questions. Amit Shah is in charge of Delhi police, yes or no, sir? Amit Shah is in charge of Delhi police. Amit Shah as Home Minister is in charge of CRPF RAF, yes or no? Yes, he is in charge. I have in front of me the 2 orders. One is the GD of the 1 o'clock in the morning at Parliament Street Police Station on the 22nd of July. What does the GD say? The GD says very clearly, GD number 0008A, which says on the 9th or 20th of July, Deputy Commandant RAF Satish Kumar Sangwan, 108 Battalion, came and informed that on DCP North Raja Bhatija's instructions, a total of 55 non-electrical shells, 15 electrical shells, 5 tear smoke granites, 2 rounds were fired from anti-riot pellet guns. Now this is a DCP ranked officer, North Raja Bhatija, reports to the Minister of Home Affairs. To who's in charge of this? Amit Shah. Who's responsible? Amit Shah. What else do we have? We have an order passed by the DCP Sachin Sharma, who is the highest ranking executive magistrate and Jantan Mantar, on 20th July at 5 o'clock. He issues the authorization to RAF to disperse demonstrators by using lathi gas and firearms. We have the orders in front of us. So how is Amit Shah saying he's not responsible? Is he not responsible for DCP North? Is Amit Shah not responsible for DCP Sachin Sharma? RAF's CRPF's own IG, first woman IG, she herself has said is in the review that there are serious deficiencies in the RAF behavior. 7 rounds were fired, 4 into the ground. We saw the banner hours. Who ordered police action in Delhi? Who ordered firing in Delhi against students? We need an answer from the Home Minister of India. Why Home Minister of India running away from the Parliament? He is running away from the Parliament and you are not even allowing LOP to speak. ये बड़ी स्पष्ट बात है कि अगर कोई भी ऐसे बंदूक चलाता है, पैलेट गन के द्वारा किसी की इंजरी करता है, तो निश्चित रूप से
ये अनुमति तो कोई देता है ना। हाँ, अगर कोई कहता है कि एसडीएम ने अनुमति दी, तो क्या हमारे गृह मंत्री ने कहा कि एसडीएम ने गलत किया? कर दी, ऑरेंज सैफरन में रंग दी गई है हमारे हॉकी के खिलाड़ियों की, और जो पूर्व खिलाड़ी उन्होंने इस पे खड़ा एतराज जताया। देखिए, ये चाहे यूनिफॉर्म बदल लें, ये एजुकेशन पॉलिसी में भी अपनी इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, कुछ भी कर लें। आपने देखा हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं इसके बारे में। हमारे देश के युवा सारे जंतर मंतर में जितने भी इकट्ठे हुए थे, वो क्या कह रहे थे इसके बारे में आप सबने सुना। ये देश की आवाज़ है। ये देश, इस देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी, उसमें आरएसएस कहीं नहीं थी। और पूरे देश को असलियत मालूम है, और जिनको नहीं पता था उनको आज पता चल रहा है कि इनकी नीयत क्या है। तो कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी जी की अगुवाई में ये आंदोलन किया था, और ये देश, इस देश की जो आत्मा है ना, उसमें अहिंसा, सत्य, भाईचारा है। कोई उसे निकाल नहीं सकता। आरएसएस वाले नहीं निकाल सकते, कोई नहीं निकाल सकता। चाहे कितनी भी फूट फैलाएं, कितनी भी हिंसा फैलाएं, कितनी भी घृणा फैलाएं, अंत में इस देश की एक आत्मा है भाईचारे की, आपसी प्रेम की, सबकी एकता की, और वो कोई उनमें से निकाल नहीं सकता। फायरिंग की बात कही, मंत्री ने सदन के अंदर कह दिया कि फायरिंग हुई ही नहीं है। और आप बताइए, तो उस लड़के जो राहुल जी आपके सामने लाए थे, उस लड़के को, उसके पूरे शरीर में पैलेट्स कहाँ से आई? आसमान से गिर गई? बस छोड़ दीजिए। सभा की कार्यवाही में आप सुन रहे थे मनोज, यहाँ पर संजय सिंह के अलावा भी तमाम लोगों की तरफ से अपने अपने तर्क रखे गए, लेकिन इसके बाद आप विपक्ष में एकजुटता भी देख रहे हैं। फिलहाल ये दो तस्वीरें आप देख लीजिए। यहाँ पर संसद के परिसर में, सदन परिसर में ही ये जो धरना प्रदर्शन है वो दिया जा रहा है। लोगों, ये जो विपक्ष है वो लामबंद होकर अमित शाह की मौजूदगी की मांग कर रहा है कि सदन में अमित शाह को आना चाहिए, जवाब देना होगा अमित शाह को। ये मांग जो है वो विपक्ष के तमाम सांसद कर रहे हैं, चाहे वो लोकसभा के सांसद हो या वो राज्यसभा के सांसद हो। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही बिल्कुल 2 मिनट में स्थगित कर दी गई, दोपहर 2 बजे तक के लिए। राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल जारी है, लेकिन इस बीच अगर हम विपक्ष के बयान की बात करें तो महुआ मोइत्रा, कपिल सिब्बल, इमरान मसूद, प्रियंका गांधी, ये तमाम विपक्ष के नेता जो हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 तारीख को हुए लाठीचार्ज और हिंसक प्रदर्शन के लिए सरकार से और अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं, गृह मंत्रालय से जवाब मांग रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। सरकार के ऊपर से एक जो लोगों के समर्थन का एक मुखौटा था वो हट रहा है, एक लेयर हट रही है। लोग अब असलियत सरकार की जान रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को लेकर, उन पर हुई हिंसा को लेकर, उन पर हुए लाठीचार्ज को लेकर, पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर तमाम तरीके से विपक्ष जो है वो सरकार से जवाब मांग रहा है। अमित शाह की मांग की जा रही है कि सदन में अमित शाह को मौजूद रहना होगा और अमित शाह से वो जवाब चाहते हैं। और यही मांग करते करते तो लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। हालांकि अब राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। यहाँ पर भी गजेंद्र सिंह शेखावत हो या फिर आम आदमी पार्टी से सांसद और राज्यसभा सांसद संजय सिंह हो, अपने अपने मुद्दों को वहाँ पर रख रहे थे। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष का जो एक विरोध है वो दिखाई दे रहा है। अरे पप्पू सिंह सुनो भाई, ज्यादा मत बोलो। उस टाइम कांग्रेस सीपीएम का साथ एक हो गया। हमारा फाइट तो सीपीएम का है, फिरोजा सब सीपीएम का। रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की।
पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। नमः पार्वती पतिये हर हर। जनपद गाजीपुर के विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, लोकप्रिय विधायक जमनिया जहुराबाद, प्रदेश सरकार के पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, प्रभारी मंत्री गाजीपुर श्री रविंद्र जायसवाल जी, विधान परिषद के सदस्य श्री विशाल सिंह चंचल जी, माननीय विधायक श्री बेदीराम जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सपना सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री विजय मिश्रा जी, पूर्व सांसद श्री राधे मोहन सिंह जी, विधानसभा की पूर्व सदस्य श्रीमती सुनीता सिंह जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री सरोजेश सिंह जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती सरोज कुशवाहा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री कृष्ण बिहारी राय जी, जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय जी, जिलाध्यक्ष सोहेल देव राजभर पार्टी श्री सुरेंद्र राजभर जी, जिला प्रभारी भारतीय जनता पार्टी श्री राकेश त्रिवेदी जी, युवा नेता श्री पीयूष राय जी, युवा नेता श्री अभिनव सिन्हा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री सुनील कुमार सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री विजेंद्र राय जी, भारी संख्या में गाजीपुर की इस पावन धरा पर उपस्थित गाजीपुर जनपद के मेरे सभी बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से महाराज गादी की इस पावन धरा को, जिसे मां गंगा की पावन धारा अभिसंचित करती है, ऋषि मुनियों की तप और साधना से पवित्र इस पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी गाजीपुर वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, गाजीपुर की धरती सदैव से राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा का केंद्र बिंदु रहा है। मैं जब रामायण के कालखंड पर कभी दृष्टि डालता हूं, उस समय महर्षि विश्वामित्र को जब अपने राष्ट्र रक्षा के यज्ञ के लिए कहीं और दृष्टि डालनी पड़ी थी, तो उस समय उन्होंने एक ही बात का एहसास किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हें बहुत ही रोचक शब्दों में उल्लेख किया है
उन्होंने कहा कि गादी तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निश्चर पापी। यानी महाराज गादी, जिनका राज्य सीर गाजीपुर में था, महाराज गादी के पुत्र ने अपने मन में संकल्प लिया कि जो ये रावण के राक्षस इस पूरे क्षेत्र में आकर के यहां के नगरों को उजाड़ रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, नागरिकों की नृशंस हत्या कर रहे हैं, इसका उपचार अयोध्या के 2 राजकुमार होंगे। और क्यों न मैं अयोध्या जाकर के इन दोनों राजकुमारों को ला करके राष्ट्र रक्षा के अपने यज्ञ को संपन्न करूं। याद करिए, जब राम और लक्ष्मण महाराज विश्वामित्र के साथ उनकी यज्ञ रक्षा करने के लिए जाते हैं, ताड़का का वध होता है, सुबाहु मारा जाता है, मारीच को कई योजन दूर मार करके फेंकते हैं। हमारा ये पूरा क्षेत्र राक्षसों से मुक्त होता है। गाजीपुर तब भी उस चीज का विजन देने वाला है। गाजीपुर ने तब भी उस आतंक के खिलाफ, उस लूट खसोट के खिलाफ, उस समय की उस अराजकता के खिलाफ एक संघनाद का नेतृत्व किया था। और याद करिए, आज भी देश की आजादी के आंदोलन रहे हो, देश स्वतंत्र भारत में भारत की सीमाओं की रक्षा करने की बात आती हो, अगर एशिया का सबसे बड़ा कोई गांव है तो अकेले गहमर में ही 12,000 सैनिक और अधिक सेनाधिकारी अकेले एक ही गांव में निवास करते हैं। एक ही गांव में 12,000 से अधिक सैनिक और सेनाधिकारी, 15,000 से अधिक अवकाश प्राप्त सैनिक और सेनाधिकारी एक ही गांव में रहते हैं, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में भी योगदान दिया। और स्वतंत्र भारत में देश की सीमाओं की रक्षा कैसे होनी है, 1948 में कबीलाई हमला हो, 1962, 1965, 1971, 1999 में कारगिल का युद्ध हो, या गत वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे गाजीपुर के रणबांकुरों ने देश की रक्षा करने के लिए अपने आप में कभी पीछे नहीं हटे। ये है हमारी गाजीपुर की धरा। याद करिए, ये वही धरा है जिस पावन धरा ने एक बड़े अभियान को हमेशा नेतृत्व दिया। जब मैं बात करता हूं तो यहां पर 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में उस समय मेजर सिंह का नाम सुनकर के अंग्रेजों की रूह कांपती थी। वे इसी धरती से थे। डॉक्टर शिवपूजन राय, भगवत मिश्र, ये स्वाधीनता सेनानी थे और देश की स्वाधीनता आंदोलन में इनकी बड़ी भूमिका थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारत की आजादी के लिए गठित आजाद हिंद फौज, उसमें गाजीपुर के दर्जनों युवाओं ने आजाद हिंद फौज के साथ जुड़ करके भारत की आजादी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान किया था। और याद करिए, 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के पैटेन टैंक को ध्वस्त करने वाला बहादुर जवान भी वीर अब्दुल हमीद के रूप में इसी धरा ने दिया था, इसी गाजीपुर की धरा ने दिया था। 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में
याद करिए 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में अपना शौर्य का परिचय देने वाले शहीद रामउग्र पांडे भी इसी पावन धरा से थे, जिनके शौर्य को देखते हुए मरणोपरांत उन्हें भारत का सेना के एक महत्वपूर्ण सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बहनों और भाइयों, ये यहां की एक समृद्ध परंपरा है। राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र भक्ति की एक समृद्ध परंपरा है। तो साहित्यिक क्षेत्र में भी हमारा गाजीपुर कभी पीछे नहीं रहा। गाजीपुर ने अनेक ऐसे महत्वपूर्ण नाम हैं जिन्होंने गाजीपुर को एक नई ऊंचाइयां साहित्यिक क्षेत्र में भी। श्री कुबेर नाथ राय हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित ललित निबंधकार और विद्वान थे। गोपाल राम गहमरी यानी गहमरी बाबू के नाम पर कहते हैं 200 से अधिक उपन्यास उन्होंने लिखे थे। और अनेक ऐसे विभूतियों को जन्म देने वाला हमारा गाजीपुर जनपद, बहनों और भाइयों, क्यों गुमनाम होता गया? क्यों इसका नाम डूब गया? क्यों जनपद का नाम लेने से लोग कांपते थे? क्यों आने से डरते थे? पहचान का संकट किसने खड़ा किया? पहचान का संकट खड़ा करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने किया तो कुछ नहीं, लेकिन आपके सामने पहचान का संकट जरूर खड़ा कर दिया। ये पहचान का संकट खड़ा करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित होने वाले भारत के राष्ट्र नायकों को सम्मान देने की बजाय, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडित किया था, और आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि डबल इंजन किए बीजेपी एनडीए की सरकार राष्ट्र नायकों को सम्मान देती है। राष्ट्र नायकों को सम्मान इस रूप में 1000 वर्ष पहले भारत को रौंदने की दिशा से आया था एक सालार मसूद को बहराइच के चित्तौड़ा नामक स्थान पर भारत के जिस महापुरुष ने, राष्ट्र नायक ने रौंद करके इस्लाम के अंडोप सबसे कड़ी सजा दी थी, वह महापुरुष कोई और नहीं, महाराज सुहेलदेव हैं। महाराज सुहेलदेव के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कोई आयोजन नहीं होने दिया, कभी कोई आयोजन नहीं होने दिया। महाराज सुहेलदेव जिनके शौर्य और पराक्रम से, जिनकी युक्ति से यह देश लंबे समय तक विदेशी आक्रांताओं की बर्बरता से बचा था, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की बजाय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने राष्ट्र नायकों का अपमान किया। ये लोग आक्रांता गाजी, सालार मसूद गाजी का मेला लगवाते थे। हमारी सरकार आई, हमने कहा नहीं, सालार मसूद का मेला नहीं लगेगा, मेला लगेगा तो महाराज सुहेलदेव की स्मृति में लगेगा। और आज मुझे प्रसन्नता है बताते हुए, बहराइच के उस स्थान पर हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव की भव्य प्रतिमा की स्थापना की है। भव्य प्रतिमा, भव्य स्मारक बना है। अब मेला लगता है, नौजवान जाते हैं,
भारत के राष्ट्र नायक के रूप में महाराज सुहेलदेव को सम्मान देते हैं। महाराज सुहेलदेव के नाम पर हम लोगों ने बहराइच में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया है। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का निर्माण किया है और प्रधानमंत्री मोदी जी और चलिए अब खबरों का रुख करते हुए आपको बताएं, जहां संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया, जहां लाठीचार्ज पायलट गन के मामले पर प्रदर्शन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग की गई। गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया, ये अभी भी विपक्ष पूछ रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। हालांकि दोनों ही सदनों में आज भी हंगामा दिखाई दिया। हंगामे के चलते आज लोकसभा की कार्यवाही जो कि शुरू होते ही स्थगित कर दी गई दोपहर 2 बजे तक। इधर राज्यसभा में भी जो कार्यवाही थी वो जारी रही, लेकिन विपक्ष का हंगामा रहा और विपक्ष गृह मंत्री से जवाब की मांग करता रहा, उनके आने की मांग करता रहा। तो ये खबर आप तक साझा कर रहे हैं, ये बड़ी खबर। हालांकि अभी भी पायलट गन के इस्तेमाल को लेकर विपक्ष जो है वो जवाब सरकार की ओर से मांग रहा है और गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग की जा रही है। जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज और प्रदर्शन के बीच पुलिस कार्रवाई पर विपक्ष सवाल कर रहा है। चाहे यूनिफॉर्म बदलने हैं, ये एजुकेशन पॉलिसी में भी अपनी इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, कुछ भी कर लें। आपने देखा हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं। हमारे देश के युवा सारे जंतर मंतर में जितने भी इकट्ठे हुए थे उनकी वो क्या कह रहे थे इसके बारे में आप सबने सुना। ये देश की आवाज़ है। ये देश, इस देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो अहिंसा और सत्य पर आधारित है। उसमें आरएसएस कहीं नहीं है और पूरे देश को असलियत मालूम है और जिनको नहीं पता था उनको आज पता चल रहा है कि इनकी नीयत क्या है। Yes. We saw the banner house. Who ordered police action in Delhi? Who ordered firing in Delhi against students? We need an answer from the Home Minister of India. Why Home Minister of India running away from the Parliament? He is running away from the Parliament, and you are not even allowing. बात है कि अगर कोई भी ऐसे बंदूक चलाता है, पैलेट गन के द्वारा किसी की इंजरी करता है, तो निश्चित रूप से ये अनुमति तो कोई देता है ना। हाँ, अगर कोई कहता है कि एसडीएम ने अनुमति दी, तो क्या हमारे गृह मंत्री ने कहा कि एसडीएम ने गलत किया? आज तक कोई बयान आया गृह मंत्री का? नहीं आया ना। क्यों है चुप गृह मंत्री? इससे साफ जाहिर है कि उनकी सहमति से ही ये हुआ है, अदरवाइज वो कहते कि एसडीएम ने गलत काम किया है। इधर चढ़ावा चोरी मामले पर समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी ने श्रद्धा में सेंधमारी की। अखिलेश यादव ने कहा चढ़ावा चोरी अक्षम्य महापाप है। अखिलेश ने कहा जमीन के सौदे के अशुभ लाभ को आपस में बांटा गया। बीजेपी ने हर जगह अपने भ्रष्ट लोग सेट किए हुए हैं। अखिलेश यादव ने चंदा चोरी मामले पर, मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर विपक्ष पर ये निशाना साधा और एक बार फिर से उन्होंने चंदा चोरी के मामले को उठाया है और कहा है कि अपने भ्रष्ट लोग जो है वो पूरे सिस्टम पे बीजेपी ने सेट किए हुए हैं। बीजेपी ने श्रद्धा में सेंधमारी की है, ये अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा। एक तरफ समाजवादी पार्टी जो कि चंदा चोरी के मामले को लेकर सरकार से जवाब मांग रही है, दूसरी तरफ पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी ने भी मांग कर दी है। छात्रों पर हुई कथित बर्बरता की स्वतंत्र जांच की जाए, उसकी मांग राहुल गांधी ने की है। दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई की मांग राहुल गांधी ने की है। छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, राहुल गांधी ने कहा। हालांकि ये केवल राहुल गांधी नहीं बल्कि
प्रियंका गांधी से लेकर विपक्ष के तमाम बड़े नेता जो है वो मांग कर रहे हैं कि एक तो निष्पक्ष जांच की जाए, स्वतंत्र जांच की जाए। छात्रों पर हुई कथित बर्बरता की स्वतंत्र जांच की मांग राहुल गांधी ने की। और दूसरी तरफ जो प्रदर्शन हुआ 20 जुलाई को लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर कार्रवाई की जाए। पुलिसिया कार्रवाई का जवाब जनता चाहती है, देश चाहता है, विपक्ष चाहता है, इसको लेकर जवाबदेही तय की जाए। तो ये तमाम मुद्दे हैं। खासतौर पर अगर हम जंतर मंतर पर हुए घमासान की बात करें, जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में पुलिसिया कार्रवाई की बात करें, तो इसको लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का काम कर रहा है। पेपर के बाद अब पैलेट गन का इस्तेमाल और उसका आदेश किसने दिया, इसको लेकर संसद के अंदर, संसद के बाहर भी लगातार घमासान जारी है। सोशल मीडिया पर भी इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है वो बार बार सरकार को घेरने का काम कर रहा है। इधर लोकसभा में राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासी घमासान तेज हो चुका है। जहां सत्ता पक्ष लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साध रहा है। इस बीच केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की है, जिसमें राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला गया। अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सदन में बिना तथ्यों के बयान देना अनुचित है और उनके बयान छात्रों को भड़काने वाले प्रतीत होते हैं। सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कैबिनेट मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी। दीदी, जिस तरीके से बच्चों पर राजनीति हो रही है, राहुल गांधी ने कल भी देखिए धर्मेंद्र प्रधान को एक शुरुआत कहा, आरएसएस को भी कहीं ना कहीं बहुत गलत चीज़ें बोली थी। आपको कैसे लग रहा है, कैसे देख रही हैं इस राजनीति को? देखिए, एक प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर अगर देखें तो बिल्कुल ही इतनी गैर जिम्मेवाराना हरकत और बात ये बोलते हैं जो कि बिल्कुल ये समझ से परे लगता है। और जिस तरह सदन में भी उन्होंने कहा, तो बिना कोई तथ्य के इस तरह की बात कहना बिल्कुल अनुचित है। और ये ऐसा लगता है कि जिस तरह की जो छात्र आंदोलन था, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस तरह के भाषा और इनके शब्दों से ऐसा महसूस हो रहा है कि ये शायद छात्रों को और ज़्यादा प्रोवोक कर रहे थे। सब लोग हैं बिल्कुल छात्र हित में, भारत सरकार काम कर रही है। आपने देखा कि नीट के तुरंत बाद पेपर जो लीक हुआ, उसके बाद फिर कैंसिल हुआ, नए सिरे से माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर से नीट कराया, बच्चे परीक्षा दिए, बच्चे पास हुए, वो जश्न मनाए। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की कहीं भी कोई मंशा नहीं है कि इन सारे चीज़ों को मिलकर कैसे इसका समाधान करे, वो नहीं करते हैं। और ये फिर ये बात करते हैं जब जहाँ इनके शासित, जहाँ के कांग्रेस शासित प्रदेश है। आज झारखंड की बात अगर हम करेंगे तो आप झारखंड में भी देख रहे होंगे कि लगातार जिस तरह से जितने भी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हो, टीचर नियुक्ति का हो, हर एक मामले में कहीं ना कहीं पेपर लीक हो रहा है। और अभी आज झारखंड में भी कल से लगातार कई दिनों से सड़कों पे बच्चे हैं, तो ये उनको नहीं दिखता है, उस पर ये चर्चा नहीं करते हैं। आखिरी सवाल दीदी, आप बच्चों को कोई मैसेज देना चाहेंगी? आप एक उस मंत्रालय से? नहीं, बिल्कुल हम बच्चों से कहना चाहेंगे कि बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए भारत सरकार काम कर रही है। निश्चित रूप से आपका हित सर्वोपरि है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से बच्चों से सीधे जुड़कर और 2014 से लगातार अगर देखें तो बच्चों के हित के लिए एक के बाद एक, चाहे नए जो उनके लिए, चाहे मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ानी हो, सीट बढ़ानी हो, उच्च शिक्षा शैक्षणिक संस्थानों की संख्या बढ़ानी हो, IIT, IIIT जैसे बड़े बड़े संस्थान, जो उच्च शैक्षणिक संस्थान है, उसकी संख्या। धन्यवाद। तो देखिए, अन्नपूर्णा देवी को आप सुन रहे थे, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं और जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि राहुल गांधी जो हैं वो गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। कैमरा पर्सन राम नरेश के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। इधर दिल्ली के पार्क में दिन दहाड़े मर्डर से सनसनी फैल चुकी है। छेड़खानी का विरोध करने पर मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पार्क में महिला को छेड़ने लगे युवक और जब इसका विरोध किया गया तो मर्डर को ही अंजाम दे दिया। उत्तर पश्चिम दिल्ली के भारत नगर थाना क्षेत्र स्थित अशोक विहार के खिम्मन सिंह पार्क में छेड़खानी का विरोध करने पर बुधवार दोपहर दिन दहाड़े एक युवक और एक विवाहित महिला
पर चाकू से हमला कर दिया गया। इस पूरे हमले में 30 साल के सुनील की इलाज के दरमियान मौत हो गई, जबकि 26 साल की देवकी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि एक नाबालिग आरोपित को धर दबोचा गया है। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर अन्य आरोपितों की तलाश के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं। दिन दहाड़े पार्क में हुई इस मर्डर की वारदात से इलाके में डर और दहशत का माहौल बन चुका है और स्थानीय लोग आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। एक स्थानीय निवासी लक्की धवन ने बताया है कि पार्क में इस तरह की वारदात होने से यहाँ के लोग डरे सहमे हुए हैं, दहशत में हैं। दिन में ही जब अपराधी इस तरह की वारदात को अंजाम दे पा रहे हैं तो शाम होने पर या रात होने पर तो दिक्कत और ज्यादा बढ़ेगी। तो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस भी अब गश्त बढ़ाती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब पुलिस गश्त पर भी, पेट्रोलिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर पुलिस नियमित पेट्रोलिंग इस पर करती तो फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। पुलिस गश्त के अलावा अगर इस तरह की वारदात होती है तो निश्चित तौर पर लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी है। आज से कावड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। 6000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। अराजक तत्वों पर सख्त नजर रखी जा रही है। कावड़ मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश नहीं किया जाएगा। सावन की शुरुआत के साथ ही आज से कावड़ यात्रा का आगाज हो चुका है। यात्रा को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। यमुना पार का अधिकतर क्षेत्र यूपी की सीमा से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर यात्रा का अधिक ज्यादा प्रभाव रहता है। अब ऐसे में पुलिस ने कावड़ मार्ग पर 15 दिनों के लिए भारी वाहनों का प्रवेश जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया है। यानी हैवी व्हीकल की जो एंट्री है वो इस पूरे मार्ग पर प्रतिबंधित रहेगी। पैदल कावड़ की ऊंचाई 6 फीट और झांकी की ऊंचाई कम से कम 10 फीट तय की गई है। और स्नान घाटों पर भी सुरक्षा के लिए जल पुलिस की तैनाती रहेगी ताकि किसी प्रकार की कोई आपात स्थिति होती है या घटनाक्रम होता है तो उसमें फौरन जल पुलिस जो है वो एक्टिवली काम कर पाए, लोगों के लिए मददगार साबित हो पाए। सुरक्षा के लिहाज से भी अगर बात की जाए तो करीब 6000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। कावड़ यात्रियों के वाहनों की पार्किंग के लिए भी अलग व्यवस्था है। ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। हरिद्वार दिल्ली, हरिद्वार से नजीबाबाद और हरिद्वार रुड़की हाईवे पर गुरुवार से 4 अगस्त तक केवल रात्रि में भारी वाहनों का संचालन होगा, जबकि 5 अगस्त से 11 अगस्त तक भारी वाहन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहने वाले हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे की बात करें तो यहाँ पर कावड़ वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने करीब 5.5 करोड़ कावड़ यात्रियों के आने का अनुमान लगाया है। पिछले साल लगभग 4.5 करोड़ कावड़ यात्री हरिद्वार गए थे। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि कावड़ मेला क्षेत्र को 18 सुपर जोन, 40 जोन और 141 सेक्टरों में बांटा गया है। हर एक सेक्टर पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है। हर एंट्री रूट पर, एंट्री मार्ग पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। सभी की निगरानी के लिए, मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की व्यवस्था भी की गई है। मेला क्षेत्र में करीब 70,000 वाहनों के लिए पार्किंग तय की गई है। सीसीआर में बनाए गए कावड़ कंट्रोल रूम के जरिए सुरक्षा व्यवस्था, सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और अन्य नागरिक सेवाओं पर 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है, यानी निगरानी रखी जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की तरफ से भी इस बारे में जानकारी दी गई। इधर आगे बढ़ते हुए आपको बताया जाए, सावन के महीने के साथ कावड़ यात्रा का भी आगाज हो चुका है। इधर कावड़ मार्गों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर कावड़ियों के लिए पंडाल की व्यवस्था की गई है। इस बार कावड़ियों के लिए क्या कुछ खास है, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कावड़ यात्रा की धूम है और राजधानी दिल्ली में भी कावड़ यात्रा के लिए एक विशेष तैयारी देखने के लिए मिल रही है। जी हाँ, कावड़ यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है और देश के अलग अलग राज्यों तक कावड़ती पैदल यात्रा करते हैं, कुछ लोग वाहनों से यात्रा करते हैं और तमाम अलग अलग राज्यों में हरिद्वार से लेकर, यानी कि देवभूमि उत्तराखंड से लेकर अलग राज्यों में जहां से कावड़ यात्रा गुजरेगी, विशेष प्रकार की तैयारियां भी होनी शुरू हो चुकी हैं। राजधानी दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये शास्त्री पार्क इलाका है जहाँ से हर बार कावड़ यात्रा गुजरती है, लेकिन इस बार की व्यवस्थाएं क्या हैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो चुकी है, क्योंकि आज यानी कि 30 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक ये कावड़ यात्रा चलने वाली है, जिसको लेकर प्रशासन ने सुरक्षा, स्वास्थ्य और ट्रैफिक के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो किए हुए हैं। ये कहा जा सकता है कि
किसी तरह की कांवड़ियों को कोई अव्यवस्था ना हो, स्वास्थ्य की चिकित्सा उनको मिलने वाली है। इसके साथ ही कई तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, शिप कैंप हैं, वो तैयार किए गए हैं। तो यानी कि कहा जा सकता है कि इस बार कांवड़ियों की सुविधा के लिए विशेष तरह की तैयारियां वो देखने के लिए मिल रही थी। तो कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, व्यवस्थाएं कैसी देख रही हैं? अभी हम देख रहे हैं कि टेंट वेंट हो रहा है, शुरू हुआ है अभी तो। वैसे कैसी लग रही है व्यवस्था, कैसी लग रही है? सही लग रही है। सही लग रही है। पूरा ग्रिल वगैरह लगा के इसको पैक कर दिया इलाके। ऐसे ही पैक कर रखा है, ऐसे ही पैक किया हुआ है। अभी इससे अच्छा और बन जाएगा। इससे अच्छा और बनेगा। तो अभी आप कांवड़ लेने जाती हैं कभी? नहीं नहीं, घर से कोई गए? तो देखिए कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, कैसा लग रहा है? लग रहा है कि इस बार की व्यवस्था जो है पहले से बेहतर रहेगी, क्योंकि कैंप जगह जगह लगाए जा रहे हैं। बेहतर है, पहले से बेहतर है। इस साल पहले से बेहतर व्यवस्था है, क्योंकि जितना इस बार कवर किया गया है इतना पहले कवर नहीं था। अच्छा। पहले इतना नहीं होता था कवर, अभी इतना कवर है। पहले नहीं होता था, लेकिन इतना जितना डेकोरेशन अभी दिया गया है इतना डेकोरेशन होता नहीं था पहले। वाटरप्रूफ ये आपके पंडाल लगाए गए हैं, इसके साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था भी इस बार दी जा रही है और ट्रैफिक भी डाइवर्जन दिया जा रहा है। भारी वाहन इस पूरे रोड पे बंद कर किए गए हैं। बहुत बेहतर होगा इसके लिए, क्योंकि कांवड़ यात्रा अपने आप में सही जगह पर पहुंचे और टाइम से अपना पहुंचे, अपना जल यात्रा पूर्ण कर रहे हैं। पहले हमने देखा था कि कुछ ऐसे अराजक तत्व थे जिन्होंने कांच के टुकड़े बखेर दिए थे कांवड़ यात्रा में। ये सब होते रहता है। ये जो अराजक तत्व है उसको कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता उसको। वो तो मानसिक स्थिति है इंसान के, वो जो कर सकते हैं वो करेंगे ही करेंगे। उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता मानसिक स्थिति को। बिल्कुल। तो देखिए दूर तक नज़र डालेंगे तो आज सिर्फ दिल्ली में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर केवल आपको कांवड़ शिविर ही नज़र आ रहे होंगे, और ये व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार ने और इसके साथ ही कुछ जो कह सकते सामाजिक संगठन हैं जो कि भक्ति में सहयोग करते हैं, उन सब के सहयोग से देखिए इस तरह की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो देखने के लिए मिल रही हैं। और पूरे कह सकते हैं कि 500-600 मीटर तक और अलग अलग लोकेशंस पे भी आपको कांवड़ शिविर नज़र आ रहे हैं। कांवड़ यात्रा जो चलने वाली है उसको बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा, और जिसको लेकर राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर कांवड़ियों के रुकने तक के इंतजाम बड़े ही बेहतरीन तरीके से किए गए हैं। कैमरा पर्सन राम नरेश के साथ मैं आंचल यादव, शास्त्री पार्क, दिल्ली। चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।